So we'll start with the today's session for physics, wave optics. We are doing the last part of diffraction. diffraction का last part हमारा शुरू है और इसमें in the previous lectures we have seen what is the Rayleigh's criteria in diffraction. If we talk about तो diffraction के अंदर हमने पिछले कुछ lectures में देखा था Rayleigh's criteria. Rayleigh's criteria उसमें ये बताया था कि अगर देर आर टू वेवफॉर्म्स सो रिलेज क्राइटेरिया हमने देखा था उसमें ये देखा था कि इफ द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स तो वहां से जो उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा वो डिफ्रैक्शन पैटर्न जस्ट रिजॉल्व, वेल रिजॉल्व, अनरिजॉल्व, ये तीन केसेस के अंदर आता है. ओके नाउ तो हम ये कहते हैं कि इसमें से एक होता है जस्ट रिजॉल्व, एक होता है वेल रिजॉल्व. दिस इज द केस आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस इज द केस आई एम टॉकिंग अबाउट. अनरिजॉल्व, जस्ट रिजॉल्व, वेल रिजॉल्व. ठीक है, तो इसके चलते वी विल बी कंसिडरिंग सम केसेस. यहाँ पर कुछ केस कंसिडर करेंगे हम लोग, जैसे कि द केस ऑफ लीनियर ऑब्जेक्ट्स. अगर दो लीनियर ऑब्जेक्ट्स है, if there are two linear objects, we'll first consider the case of two linear Excuse me, objects. sir. हाँ बोलो. Sir, you are sharing the screen. Am I not sharing the screen? Yes, sir. Okay, let me do that. Is that seen? Yeah, Yes, sir. हो गया शेयर. चलिए, सो इन केस ऑफ टू लीनियर ऑब्जेक्ट्स ऐसा मान के चलते हैं कि ये दो लीनियर ऑब्जेक्ट्स हैं. दीज आर द टू लीनियर ऑब्जेक्ट्स और इसे हम यहां से देख रहे हैं. ठीक है, दिस कैन बी एन आई ऑफ द ऑब्जर्वर और इट कैन बी टेलीस्कोप or it can be any microscope, any optical device. Okay, तो in this case यहां से अगर उसको हम देख रहे हैं, then I'll consider this distance. This is the distance I would say, and this is the angle. इस distance को मैं बोलूंगा कैपिटल D. This angle is d theta, and ये जो है, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स रिजॉल्व कब दिखेंगे? व्हेन आर दे गोइंग टू बी सीन रिजॉल्व? दिस डिस्टेंस आई विल से दैट दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसको मैं y बोलूंगा. आई विल कॉल दिस डिस्टेंस एज y. ठीक है, इज दैट ओके? सो यहां पर इन दोनों से आने वाले जो व्यूज है वो अपने को क्लियर दिखेंगे. कैसे क्लियर दिखेंगे? इस तरह से जस्ट रिजॉल्व दिखेंगे. व्हेन विल वी सी दिस? तो यहां पर फॉर दिस टू लीनियर ऑब्जेक्ट्स वी डिफाइन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मतलब जहां पर रिजोल्यूशन शुरू होता है. लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, वी कॉल दिस एज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, and I'll denote this limit of resolution by d theta. This angle is limit of resolution. Is that clear? If they are very close, then this angle will be small. Okay? और यहां पर हम s is equal to r theta अगर अप्लाई करते हैं, s is equal to r theta, then what is d theta is equal to? It is y upon d. Yes or no? Is not that y upon capital D? Yes or no? Is this okay? All right. लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. इसी तरह से अब ये जो एंगल है इसका और एक आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूं. लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन फॉर दिस इज d theta, and this d theta is equal to lambda upon a. We will accept this formula without proof. इस सेक्शन में हम कई फॉर्मूले विदाउट प्रूफ एक्सेप्ट करने वाले हैं.
Is that clear? What is lambda? Lambda is the wavelength of the light used. Lambda is the wavelength of the light used. And what is A? A is the slit width. Slit width. Diffraction pattern में जो slit width होता है वो है A. Is that clear? And this is equation number 7.28. I hope you can see this equation here on the next page. This is the equation I'm talking about. समझ में आ गया? D theta is equal to lambda upon A. Any doubts about this? Any doubts about this? सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? Alright. तो यहाँ पे so this is limit of resolution and this is also delta theta. ये तो हमको S is equal to R theta से मिल गया. So let me equate these both. Let me equate this both. So यहाँ पर मुझे मिल जाएगा therefore what is delta that is lambda upon A is equal to y upon d. अब ये y क्या है? Y is the minimum separation distance at which they will be seen as just resolved. Okay? Y is the minimum distance of separation. So let me just equate this both d theta और d theta. ये रेडीमेड फॉर्मूला है और ये s is equal to r theta से आया हुआ फॉर्मूला है. So y I want to comment about this distance y. What is y? Y is the minimum distance of separation between the two objects, two linear objects, so that they are seen as just resolved. Okay? So let me just write here. What is y here? Y is equal to minimum distance of separation. Minimum distance of separation between the two objects, between two linear objects, so that they are just resolved. That's the case of just resolved. Is this clear to all? समझ में आ गया सबको ये? So what is this value of y? यहाँ से आप देख के बता दीजिए मुझे. Therefore what is y is equal to lambda big D upon small d. Small d बोलो या small a बोल दो. It's the same thing again. समझ में आ गई बात? Lambda capital D upon small a. अब यही है इक्वेशन नंबर 7.29. मार्क कर लीजिएगा. इक्वेशन 7.29 यहाँ ये रहा यहाँ पे. This is equation 7.29. Is that clear? Any doubts about that? Okay. Okay, in the new books it is 7.31. Okay, fine, no problem. Is that clear to all? और इसके पहले ये वाला इक्वेशन था जो मैंने पहले आपको बताया था. This is the ready-made formula lambda upon a. Is that clear? चलिए आगे बढ़ते हैं. So that is about the case of just resolved and the limit of resolution. We have applied this concept of limit of resolution for the two linear objects. Now we consider the case of pair of point objects. We consider the case of pair of point objects. Point objects जब हम consider करेंगे तो यहाँ पे this is the source of light and this is a very small circular ring. अब ये जो लाइट है इसकी वजह से जो फ्रिंज पैटर्न आएगा ये रियल है, रियल एरी डिस्क ऑब्टेन्ड यूजिंग द लेजर. तो यहाँ पर ये सर्कुलर एपर्चर है. नाउ दिस इज एपर्चर, इट इज हैविंग वेरी स्मॉल साइज. लेट मी टेल यू, इसका साइज बहुत छोटा है और इसकी वजह से यू विल गेट ये जो पहला है दैट इज द सेंट्रल ब्राइट डार्क. इसको हम सेंट्रल ब्राइट डार्क कहते हैं. ये रहा दैट इज द फर्स्ट वन. इस तरह का मिलता है वो. इज दैट क्लियर टू ऑल? सो दिस इज द सेंट्रल ब्राइट डार्क. इसके बाहर एक ब्लैक कलर का रिंग मिलेगा. सो दिस इज एक्चुअली द सेंट्रल मैक्सिमा, टू टेल यू द फैक्ट.
नहीं, उसको डार्क उन्होंने यहाँ पे दिखाया है, बट रियलिटी में वो ऐसा दिखता है। टू अवॉइड द कंफ्यूजन यहाँ पर उन्होंने रियल पिक्चर दिखाया गया है। इज दैट क्लियर? सो सेंट्रल ब्राइट ही बोलेंगे उसको हम लोग, सेंट्रल ब्राइट। इट इज सेंट्रल मैक्सिमा। इज दैट क्लियर टू ऑल? फॉलोड बाय दिस इज द फर्स्ट मिनिमा। तो इन्होंने यहाँ पर इसको रिंग को नाम क्या दिया है? सबसे जो अंदर का है उसको सेंट्रल ब्राइट बोलेंगे। देन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरीज डिस्क एंड देन एरीज रिंग। So these are Aries rings and Aries disc. सबसे अंदर का है उसको Aries disc कहते हैं. Is that clear to all? ठीक है? So Airy and Abbe, these are the two scientists who have contributed in this field. Airy and Abbe, ये दोनों साइंटिस्ट ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है. ओके? और फिर तो यहां पर there are three instruments that we will talk about. तीन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात होगी यहाँ पे. एक है ह्यूमन आई, एक माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप. इज दैट क्लियर? वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टू थिंग्स विच आर अप्लाइड फॉर दीज थ्री ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है? तो यहाँ पर पहला जो हम देखने वाले हैं, रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप. रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द टू पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, तो उसके अंदर देयर आर डिफरेंट केसेस दैट वी विल कंसीडर. रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप. या लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. नाउ उसके अंदर भी दो केसेस है माइक्रोस्कोप के लिए. पहला केस है द माइक्रोस्कोप विथ पेयर ऑफ नॉन luminous objects which are dark objects, which is generally the case, which is most of the times the case. Are you understanding what I'm saying there? Non-luminous objects, or we also call them as dark objects. तो इसके अंदर the limit of resolution is given by for non-luminous objects. यहाँ पर limit of resolution is given by a distance, limit of resolution. By limit of resolution, what do we mean? कि there will be the just resolved case. There will be just resolved case. तो limit of resolution, it is denoted by A. Limit of resolution is denoted by A, and it is equal to lambda upon 2 mu sin alpha. अब साइन अल्फा क्या है? साइन अल्फा एक्चुअली जो भी कोई हम माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं या ह्यूमन आई यूज कर रहे हैं या टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं, इट विल हैव लेंस लाइक दिस. ये लेंस है, या फिर उसको ऐसा लेंस हम कंसीडर कर सकते हैं. तो यहां से अगर एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट से जो भी रेज जाएंगे ऐसे, सो ये जो रेज है, वॉट एवर दिस एंगल, ये एंगल होगा अल्फा और ये एंगल होगा अल्फा. सो जो कोन का एंगल तैयार होगा, दैट एंगल इज 2 अल्फा एक्चुअली. इज दैट क्लियर? द एंगल सबटेंडेड बाय द कोन. इज दैट क्लियर? एट द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है. एनी डाउट्स अबाउट दिस? समझ में आ गया ये एंगल कौन सा है? इज दैट क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ये फॉर्मूला है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का. विल डायरेक्टली एक्सेप्ट दिस फॉर्मूला. इज दैट क्लियर? ठीक है ना. इसमें ये जो होता है ना, म्यू साइन अल्फा, म्यू साइन अल्फा इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल एपर्चर. इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर. शट अप. वी कॉल दिस एज न्यूमेरिकल एपर्चर. खड़े रहो, खड़े रहो. NA, in short we call this as NA, numerical aperture. Is that clear? So how do I write this formula again? I'll write it as A is equal to lambda upon 2 times numerical aperture. I hope this is clear to all. और याद रखिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का जो रेसिप्रोकल होता है उसे कहते हैं रिजॉल्विंग पावर. So what is the resolving power? The resolving power is given by, resolving power is given by 1 upon A. मतलब क्या होगा यहाँ पे? It will be 2 times numerical aperture
upon lambda, or it is 2 mu sin alpha upon lambda. अच्छा, if this is carried out in air, अगर ये एयर में कैरी आउट किया होगा तो क्या होगा उसका वैल्यू? mu is the refractive index of the medium. Mu is the refractive index of the medium. तो क्या होगा refractive index of the medium? Refractive index of medium. Is that clear? तो resolving power of the microscope क्या हो जाएगा? In this case 2 mu sin alpha upon lambda. Okay. Now there is the second case which is rarely used. कि the objects which we are observing, the objects under consideration, these objects are luminous objects, self luminous object. Microscope जिसमें self luminous, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है. This is the rare case, but still we will note down this formula. The self luminous objects, this is the case of self luminous objects. Okay, so in that case the formula is A is equal to 1.22 lambda n upon 2a sin alpha. मतलब I'll write that formula here directly. This is the limit of resolution is given by the limit of resolution, yeah, self luminous object का limit of resolution is given by A is equal to, यहाँ पर lambda है तो in this case बाकी सब चीजें सेम है, it is only 1.22 lambda upon 2 mu sin alpha, same. 2 mu sin alpha, is that clear? 2 mu sin alpha. और इसे अगर मैं डिवाइड कर लूं तो ये बन जाएगा 0.61 लैम्बडा अपॉन म्यू साइन अल्फा. बट आई विल प्रेफर टू रिमेंबर द फर्स्ट वन. ये वाला फॉर्मूला मैं याद रखने का. इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया सबको? ओके, इज दैट ओके? ऑलराइट. अच्छा, इस केस में ये जो डिनोमिनेटर बचा है इसको न्यूमेरिकल एपर्चर बोला है. मतलब इसका म्यू साइन अल्फा, दिस इज द न्यूमेरिकल एपर्चर, जस्ट लाइक दैट. तो दिस इज 0.61 लैम्बडा अपॉन न्यूमेरिकल एपर्चर. अच्छा, अगर ये है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, देन व्हाट विल बी द रिजॉल्विंग पावर? द रिजॉल्विंग पावर इज गिवन बाय, इट इज 1 upon a, that is 2 mu sin alpha upon 1.2 lambda. हाँ, रेसिप्रोकल ही होता है, यही बताया था ना मैंने आपको. इट्स द रेसिप्रोकल ओनली. ठीक है, सो लेट्स पुट दिस इन द बॉक्स. दिस इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप विद सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. हाँ, कौन सा फॉर्मूला? हाँ, आपको ए नहीं, आपको कई बार रिजॉल्विंग पावर पूछते हैं, कई बार लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. सो हाउ आर दीज फॉर्मूली कनेक्टेड? दे आर सिंपली द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. इज दैट क्लियर टू ऑल? वेल, दीज आर द फॉर्मूली व्हिच आर गिवन ऑन पेज नंबर, दिख रहा है आपको, शायद पता होगा, ये रहा, ये है वो सारे फॉर्मूले. दिस इज फॉर द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड दिस इज फॉर द रिजॉल्विंग पावर. एनी डाउट्स अबाउट दैट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो जब तक हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोप की, देन दिस इज इन टर्म्स ऑफ अ डिस्टेंस. ठीक है, लेकिन टेलीस्कोप के लिए दिस इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एन एंगल फॉर टेलीस्कोप. सो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन फॉर द टेलीस्कोप, इफ आई टॉक अबाउट द रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन फॉर द टेलीस्कोप, सो इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एन एंगल. वी से इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एन एंगल. तो देखते हैं यहाँ पे, इज द नेक्स्ट वन, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप. Reciprocal of least angular resolving power of a telescope is defined as the reciprocal of the least angular separation between the objects that are just resolved. तो यहाँ पर एंगल होगा. Is that clear to all? देखिए, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के लिए हम दो चीजें बोल सकते हैं. इट कैन बी दिस डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, और इट कैन बी द angular separation also. It can be d theta or it can be in terms of y. I hope this is clear to you all. All right, so that is ये limit of resolution. We can write it in the terms of angle also. तो ये रेडियन में होगा.
और वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ऑल्सो, ये मीटर में, मिलीमीटर में, माइक्रॉन्स में होगा। ओके तो टेलीस्कोप के लिए वो एंगुलर सेपरेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। फॉर द टेलीस्कोप दे मेक यूज ऑफ द एंगुलर सेपरेशन। तो टेलीस्कोप के लिए जो फॉर्मूला होता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, or we call this as angular separation. We also call this as angular separation. Well, I'll denote this by theta, which is equal to 1.22 lambda upon d. 1.22 lambda, lambda is the wavelength and d is diameter of, अब देखिए टेलीस्कोप कैसा होता है, टेलीस्कोप एक छोटा लेंस होता है, दूसरा बड़ा लेंस होता है, और वो कुछ इस तरह से स्टैंड पर लगाया जाता है, बराबर है ना, करेक्ट ना। और यहां से हम उसको देखते हैं, वी एक्चुअली सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक मून और द व्हाट डू यू से सम प्लैनेट्स, वी ट्राई टू सी थ्रू दिस, दैट इज द, अब ये जो होता है इसे कहते हैं आईपीस एंड दिस इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्टिव। और इस ऑब्जेक्टिव का जो डायमीटर होता है, whatever the diameter of this objective, we call this as d। तो ये d जो है that is the diameter of objective, it is also called as aperture। d is the diameter of objective, we also call this as aperture। is this clear to all? So this is the formula for limit of resolution। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रिजॉल्विंग पावर। so what will be the resolving power? Yep, resolving power is rp is equal to 1 upon theta, that is equal to capital D upon 1.22 lambda। any doubts about that? This is very clear, ठीक है। so let us ये formula for limit of resolution and the resolving power। any doubts about this? now we are going to make use of this formulae। इन फॉर्मूले को हम यूज करके आज क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके let's begin with the MCQs here। आपके सामने आपने अभी अभी टेलीस्कोप लास्ट वाला जो फॉर्मूला है ना वो देखिए। so what is the formula for telescope? I'll write here the formula for telescope। d theta is equal to, limit of resolution की बात करें तो 1.22 lambda upon d। अरे क्या 2 sin अल्फा, अरे किसके लिए है वो, टेलीस्कोप के लिए नहीं है। हाँ तो इसलिए मार्क कर लो ठीक से, देखो ये है फॉर्मूला फॉर द टेलीस्कोप। कौन सा है टेलीस्कोप के लिए, चलिए बताइए। A telescope is used to resolve two stars separated by this much। अब ये एंगल है कि क्या है, रेडियन में दिया है। That means what is d theta here? d theta here is 4.6 into 10 raised to minus 6 radian। Is that okay? If the wavelength of the light used is lambda is equal to 5460 angstrom, मतलब 5.46 10 raised to minus 7 meter, what should be the aperture? Aperture मतलब d पूछा है उन्होंने, what is the value of d there? So it is a formula, substitution, answer क्या बनेगा बताइए, d is equal to 1.22 into lambda, lambda क्या आएगा 5.46 into 10 raised to minus 7 divided by lambda sorry divided by d theta। अब ये रेडियन में होना चाहिए, so this is 4.6 into 10 raised to minus 6। so what is this going to give me? 1.22 into 5.46 divided by 4.6
इंटू 10 का पावर आएगा -1। इज दैट क्लियर? कैसे करेंगे जी इसको अभी? कैन आई से दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट? 1.2, 5.5 एंड 4.5 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा 5 9 जा 5 11 जा, करेक्ट है। देन दिस इज 3 4 जा 3 जा 44 अपॉन 3, तो व्हाट इज दिस गोइंग टू बी? 4.4 by 3, 1.8 जा 1 point, एक सेकंड, ये क्या आएगा बताइए मुझे गौर से। दिस इज 1.2 इंटू 5.5, 5.5 को मैं 55 ही लिख लेता हूँ और नीचे लिखूंगा 45 और ये 10⁻⁻1, सो दैट विल गिव मी व्हाट? दिस इज 11 9 3 जा and 3 4 जा. Now this is 0.4 into 1.1 upon 3. So what is that going to give me? 0.44 by 3, 0.14 कहाँ से आएगा भाई? हाँ 4 ही आएगा, 1448. That is A is the answer there. Any doubts about that? Is this clear to all? Did you all understand the method of approximation? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना? दिस वाज वेरी सिंपल एक्चुअली, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 77। आपको देख के मुझे बताना है, डायमीटर ऑफ अ पुपिल ऑफ ह्यूमन आई इज अबाउट 2 मिलीमीटर। क्या क्या क्या? हाँ स्मॉल डी या कैपिटल डी। अब फॉर्मूला कौन सा, ये कौन सा केस है? देखिए हमने माइक्रोस्कोप देखा, सेल्फ ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, और हमने टेलीस्कोप देखा। ये केस कौन सा है? ह्यूमन आई का तो हमने फॉर्मूला ही नहीं देखा है। होल्ड नाउ, तो क्या होगा यहाँ पे बताइए? diameter is given, human eye is the most sensitive to the wavelength of this the limit of resolution of human eye, the answer is in angle है ना ये मिनट्स। हाँ तो इसका मतलब थीटा चाहिए, तो थीटा का फॉर्मूला आपको यहाँ पर कौन सा वाला? टेलीस्कोप का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। इज दिस क्लियर टू ऑल? यू हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर टेलीस्कोप। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो टेलीस्कोप का फॉर्मूला होता है डी थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा अपॉन कैपिटल डी। तो इसमें ये रहा डी, ये रहा लैम्बडा, और आपको पूछा है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, मतलब डी थीटा पूछा है। इज द क्वेश्चन क्लियर? इज द क्वेश्चन क्लियर टू योर? हाँ दिस इज डी, आपको यही ऑब्जेक्टिव, यही आपको यूज करना है। व्हाट स्मॉल डी? डी थीटा तो पूछा है। हाँ अरे यार इसको डी थीटा बोलो, थीटा बोलो, क्या फर्क पड़ता है? चलो थीटा बोल देता हूँ। हाँ ठीक है ना। चलिए तो दिस इज थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा क्या आएगा? 5.55 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि 55 10⁻⁹ है, नैनोमीटर है, डिवाइडेड बाय डी is 2 into 10⁻⁻3. That's very simple actually. Let me call this as 0.61, 0.6 ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। 6 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा ये? इसे 6×5 = 30, 6×5 3, 6×5 33, 6×5 33, 1 2 3, 3.33 इंटू 10⁻⁻, क्या आएगा? -4, बट दिस इज इन रेडियन। उड़ी बाबा, क्या माइनस? करेक्ट है। अभी मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन टू डिग्री, so I'll have to multiply by 180 upon pi, right? So this is 3.3 into 180 upon pi. तो pi मतलब into 10⁻⁻4,
नाउ दिस पाई इज 3.14, सो इसको अप्रोक्सीमेट करके इसको पूरा कैंसिल ही कर दूंगा मैं। समझ में आ गया क्या? सो दिस विल गिव मी व्हाट, इट इज 1.8 इंटू 10 रेस टू 1 2 माइनस 2, दिस इज इन डिग्री। अब डिग्री को मिनट्स में इंटू 60, so this will be approximately 1.8 into 60 into 10 raised to minus 2, तो कुल मिलाकर क्या आएगा देखिए, एक जीरो आ गया, 1080, 10.8 minutes, is that clear? 10.8 minutes, 10.8 तो कुछ भी नहीं है, कहाँ गया? 10.8 and it's 10 raised to minus 2 we didn't take. लिया ना? नहीं लिया, एक सेकेंड ना, क्या आएगा ये? 108 into 10 raised to minus 2, that will be 1.08 minute। 1.08 का सबसे नजदीकी आंसर इज ए। इज दिस क्लियर टू ऑल? Yes. 50, नहीं, this is 77 no? Yeah, is this okay? Any doubts about that? A is the answer there। समझ में आ रहा है सबको ये? इसमें क्या डिफिकल्ट था? कुछ नहीं, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन, लेकिन कन्वर्ट दिस इनटू डिग्री, रेडियन, ये बेसिक चीजें हैं, एंड द मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 points separated by the distance, 2 points separated, देखिए कभी कभी वो सेपरेशन डिस्टेंस का होता है, कभी कभी एंगुलर सेपरेशन भी दे देते हैं, करेक्ट ना? Two points separated by the distance of 0.1 millimeter can just be inspected in the microscope when the light waves the distance of separation is given here, okay, 0.1 millimeter, and lambda is equal to 6 into 10 raised to minus 7 meter if the light of wavelength, ये lambda 1 है and this is lambda 2, तो this is the limit of resolution, जिसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा फॉर्मूला है, a बोलते हैं। so let me call this as a1, lambda 2 is equal to 4.8 into 10 raised to minus 7 meter, तो what will be the limit of resolution, a2 पूछा है, ये limit of resolution इसी है ना, isn't it? now what is the formula? देखिए ये पॉइंट्स आर सेपरेटेड एंड दे आर इंस्पेक्टेड बाय द माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप के दो फॉर्मूले हैं, सेल्फ ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। दिस इज नॉन ल्यूमिनस, मोस्टली द केसेस आर नॉन ल्यूमिनस, क्योंकि सूरज को देखने के लिए या चांद को देखने के लिए वी विल नेवर यूज माइक्रोस्कोप, वी विल हैव टू यूज द टेलीस्कोप देयर, इजंट इट? तो यहाँ पे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए हियर, ए इज इक्वल टू लैम्बडा, नहीं ए इज इक्वल टू दिया है ना, हाँ, लैम्बडा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा या साइन अल्फा, जो भी है। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो वो तो 1 हो जाएगा, दैट मींस दिस फॉर्मूला गेट्स मॉडिफाइड एज 2 साइन अल्फा। नो, फॉर द गिवन लेंथ अल्फा इज फिक्स्ड, तो कैन आई से दैट a is directly proportional to lambda, therefore a2 upon a1 is equal to lambda 2 upon lambda 1, so a2 I have to calculate, this is 0.1 and lambda 2 is 4800 and this is 6000, ये गया, एक दो गया, 4 upon 5 ना, तो what is a2 is equal to 0.1 into 0.8, 0.08 millimeter. Is this clear? So what is the answer there? Any doubts about this? समझ में आ रहा है सबको ये? ओके, कोई नहीं, सिर्फ करेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। टावर वाले में बाद में कर लूंगा, टावर वाले में कुछ गड़बड़ लग रहा है। 79 नहीं, विल गो टू
This is the formula for Fresnel distance. ZF is equal to a square upon lambda, distance which the light can travel. Light can travel. क्योंकि अगर यहाँ पर लाइट लगा देते हैं तो लाइट पूरा चौक तक नहीं जाता है ना, बट समटाइम्स इट गोज. कोई बहुत बड़ा फोकस अगर होता है ना, बहुत, हाँ, तो वो वाला लाइट आता है, या एरोप्लेन के लाइट जो होते हैं वो काफी दूर तक, लेकिन वो भी ज्यादा दूर नहीं जाते. तो वो डिपेंड करता है कि व्हाट इज द वेवलेंथ यूज्ड देयर एंड व्हाट इज द स्लिट विड्थ. दिस इज स्लिट विड्थ. इज दैट क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज द, हाँ, ओके, या. तो इसके लिए ये जो है उसे हम एपर्चर साइज भी बोल सकते हैं. वी कैन कॉल दिस एज एपर्चर साइज. एनी डाउट्स अबाउट दिस? समझ में आ रहा है सबको ये? चलिए, तो अभी हम ZF is equal to a square upon lambda. All right. So I have to use this formula here. यही फॉर्मूला मुझे यूज करना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है. ये जो है D या A कुछ भी बोल सकते हैं. इसमें लैम्बडा इज A क्या होता है यहाँ पे? एपर्चर साइज. ये होगा एपर्चर साइज. चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे. इसके लिए light of wavelength, this is the wavelength of the light, is incident on the aperture size of 2 millimeter. This is A. The distance up to which the light can travel such that its spread is less than the size of the aperture. Yeah. So it will be ZF is equal to A square. मतलब क्या है? 2 into 10 raised to minus 3 का square divided by lambda 6 into 10 raised to minus 7. कितना आएगा ये? 4 upon 6 into 10 raised to minus 6 plus, that is minus 1. Yeah, plus 1. So 40 upon or 20 by 3. 20 by 3. 2 2s are, 2 3s are. Why 6.67? 20 by 3. 20 by 3, 6.67. 6.67 meter. So what will be the answer here? B is the answer. Is this clear to you all? Very easy. Only the thing you didn't know the formula. हाँ, मतलब this is not given in the HSC, तो ये formula जो है NCERT के बुक में ऐड हो जाता है. Is that clear? ठीक है. But very simple formula. For what distance? Once again, it is the same formula. Question number 81. For what distance is ray optics a good approximation when the aperture is this is A, 4 millimeter wide and the wavelength is formula क्या है? ZF is equal to a square upon lambda. अब they are asking for what distance. So a square is 16 into 10 raised to minus 6 upon lambda is 5 into 10 raised to minus 7. So this will become 160 upon 5. 15, 32 meter. B is the answer there. Is this okay? Any doubts about this? समझ में आ रहा है सबको ये? अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 80, 81 भी हो गया ना. 82 is a star problem. 82 is a star problem. आप क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया है देखिए, बताइए मुझे क्या दिया है. Human eye has an approximate angular resolution. उन्होंने इसको फाई बोला है, कभी थीटा भी बोलते हैं. अब के बार उन्होंने एंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ आवर ह्यूमन आई दिया है. कितना दिया है ये? फाई बोलिए या थीटा बोलिए. इट इज 5.8 into 10 raised to minus 4 radian. And the typical photo printer prints a minimum 300 dpi dots per inch. 1 inch is 2.54 centimeter. At what minimum distance Z should a printed page be held so that one does not see the individual dots? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है. देखिए ऐसा है कि ये एक पेपर है समझो, ठीक है. डॉट्स पर इंच, अगर हाँ डॉट्स पर इंच जो है, यहां से
एक इंच में 300 डॉट्स। सुनिए ना, सुनो सुनो सुनो। There are two dots if I talk about. I want to find out what is the distance between the two dots. 300 dots और डिस्टेंस, ठीक है। 300 के लिए डिस्टेंस कितना है? 2.54 सेंटीमीटर इंटू 10⁻² मीटर, करेक्ट। तो दो डॉट के बीच में क्या डिस्टेंस है? तो डिवाइड करना पड़ेगा इसको मुझे। This distance is divided into 300, isn't it? So that will be the distance between the two dots. Is that understood? Distance between two dots. Distance between two dots. Let me finish my explanation, then all of you can raise the doubts. मेरा explanation please खत्म होने का wait कीजिएगा. So it will be 2.54 into 10⁻² upon 300. Any doubts about this? This is meter. That is equal to कितना आएगा ये? 3 1 जा 12 something like that, 8.4 or something, or I'll keep it as it is right now. That is not my final answer. तो कैलकुलेशन जब करने तब मैं कर लूंगा, अभी नहीं। ठीक है, अब देखिए ये है वो डिस्टेंस, वो डॉट्स में ऐसे भी दिखा सकता हूँ। These are the two dots. समझ में आ गया? And we are looking at these dots from at some distance. यहां से देख रहे हैं उसको। Is that clear? Now I'll just join this thing. ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है वो मैंने पता किया है। What am I going to call this distance? Let me call this distance as capital D. I'll call this as capital D. Okay? और ये जो है रिजोल्यूशन का एंगल for human eye is phi. They are asking at what distance do we hold the paper so that, क्योंकि अगर नजदीक लाएंगे तो we'll be able to see the dots. So just resolved केस के लिए डिस्टेंस x क्या होगा? Did you understand that? देखिए ये है, these are the two dots, two consecutive dots, ये उसका डिस्टेंस है। तो मुझे सिर्फ s = r थीटा यूज करना है। ये बताया है कि phi जो है ह्यूमन आई के लिए, व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ phi टू आइडेंटिफाई दोस 2 पॉइंट्स। वो जो 3 केसेस है ना, अनरिजॉल्व्ड, जस्ट रिजॉल्व्ड, वेल रिजॉल्व्ड, तो ये जो जस्ट रिजॉल्व्ड है दैट इज द लिमिटिंग पोजीशन, करेक्ट ना? उससे नजदीक आएगा तो वेल रिजॉल्व हो जाता है, और उससे दूर जाएगा तो अनरिजॉल्व रहेगा। सो वी वांट व्हाट इज दैट डिस्टेंस, जब अपने को पता चलेगा कि हाँ दिस इज ये दो डॉट्स है अलग से दिखाई दे रहे हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? सो दे हैव ऑलरेडी गिवन इज दिस एंगल, इट्स जस्ट s = r theta, we have to substitute. It's just d = x phi that I have to substitute. So what is x = d upon phi? d is this, क्या है वो? 2.54 into 10⁻⁴ divided by 3, ये हो गया, and ये हो गया d upon phi. Phi is this, so let me just multiply this, denominator में आएगा 5.8 into 10⁻⁴। समझ में आ गया? 10⁻⁴ पूरा कैंसिल हो जाएगा, so what do you get there? This will become 2.5 upon 3 into 6 approx, ठीक है ना? So that will be what? 25 upon 180, isn't it? 180. So I think I'll have to divide this by 5 से तो कर ही सकते हैं, 10 से कर ले दो। हाँ, 5/36 और any further? 0.25 upon, ये तो वहीं पर आ गया ना, 1.8। रुकना, और कुछ नहीं कर सकते वहां, कहाँ 1/6? 5 को 6 किया तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 9 जा and 0.125, and then this will become like 1.25 upon 9, तो ये कितना आएगा? 9 1 जा
3 बचा, 4 जा अप्रोक्सीमेटली 0.14, अप्रोक्स 0.14 मीटर, मतलब 14 centimeter. So what's the answer here? A is the answer. Is this clear to all? Was that a good question? It was. It was a good question. I'll switch over to the next part now. Now before I'll go to the first question which I have kept aside. शुरुआत में मैंने एक क्वेश्चन रखा था यहाँ पे, इस क्वेश्चन को मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट नाम का जो चैप्टर है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, इसमें I'll give you one note, very important note. The name of the chapter that we are going to consider here is dual nature of light. A few things which I am going to tell you here. इस चैप्टर में हम ये कंसिडर करने वाले हैं कि the light is in the form of, yeah, the light is in the form of waves and the light is in the form of particles also. Earlier these particles were called as corpuscles by Newton, लेकिन बाद में इसे फोटॉन कहा जाता है. Photons, these are the packets of energy. So when the light is coming, we say this light is coming in the form of energy packets. Okay, each energy packet, क्योंकि वो आधा पैकेट नहीं मिलता, पूरा का पूरा मैगी का पैसे पूरा का आधा पैकेट नहीं देंगे ना मैगी तुमको. So each packet will have the energy h nu, where h is Planck's constant. The value of this Planck's constant is 6.63 into 10 raised to minus 34 joules second. ठीक है, और nu is the frequency of light. Nu is the frequency of the light. This is the energy carried by each photon. तो there was a scientist जिसका नाम था लुई डी ब्रॉगली. लुई डी ब्रॉगली, इसने एक हाइपोथेसिस दिया था, एक थियरी दिया था. I'll explain you what is that theory. वो थियरी ये बोलता है कि nature loves or likes symmetry. Everything in the nature is symmetrical, isn't it? Every natural thing is symmetrical. Energy is a natural thing and it is symmetrical as well. ठीक है, तो energy is available in the wave form or it is also available in the particle form. Okay, तो उसी तरह से जो भी कुछ पार्टिकल्स हम देखते हैं, whatever particles that we see, for every particle, for every matter particle, there is a wave associated with it. He called these waves as matter waves. उसने इस waves को क्या नाम दिया? Matter waves. For example, if we consider the smallest particle, proton या इलेक्ट्रॉन भी अगर कंसिडर करें तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड भी वहां पर एक वेव होगा. दिस इज व्हाट ही टोल्ड, दिस इज व्हाट ही एक्सप्लेन्ड. और उसके लिए उसने कुछ फॉर्मूले दिए. वी आर गोइंग टू सी दोस फॉर्मूले नाउ. सम फॉर्मूले वी आर गोइंग टू सी हियर. या 315 पेज नंबर 317 पे दिए हैं वो फॉर्मूले, आप लोग देख सकते हैं पेज 300. या नाउ कमिंग बैक टू डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो जैसे एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है, वैसे एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू एम सी स्क्वायर. E is equal to mc square, Einstein's energy equation. But that is nothing but m into c, correct? And
आपको जैसे पता है कि साउंड वेव्स को हम बोलते हैं v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, दिस इज फॉर साउंड वेव्स, बट वही चीज जब लाइट वेव्स के लिए आती है तो ये इक्वेशन हम किस तरह लिखते हैं जी? फॉर लाइट वेव्स स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन बाय c and frequency of light wave is called as nu और lambda is the wavelength. So is that clear to all? Sound waves के लिए इक्वेशन होता है v is equal to n lambda और light waves के लिए वही इक्वेशन हम किस फॉर्म में ले हैं? c is equal to nu lambda. तो यहाँ पर nu is equal to c upon lambda, hc upon lambda. Did you understand this? c is the speed of light, it gets cancelled. So what do you get there? This is mass into velocity. Mass into velocity is collectively called as the momentum. So this is h upon lambda. h upon lambda. Is this clear to all? So this is the momentum, जिसको हम mass into velocity भी बोल सकते हैं. Any doubts about this so far? Is this clear to all? Or in other words, I can say what is lambda is equal to, इसको rearrange करके लिख सकते हैं h upon p या h upon mass into velocity या mass into. So this is one more way of writing the same equation. Is this clear to all? Any doubt so far? ये मैंने सिर्फ दो ही फॉर्मूले के साथ खेलता गया E is equal to mc square, E is equal to h nu, and I got all these equations. Is that clear to all? ठीक है, अब आगे चलते हैं. एनर्जी So that was second point of my explanation. अगले point की तरफ. Now whenever let us say a particle of mass m moving with velocity v, so it will have the energy called as kinetic energy. I'll simply denote it by E is equal to half mv square. If I write it in the form of velocity, then what will be this velocity? V is equal to क्या हो जाएगा? It will be square root of 2e upon m. Is that clear? I hope you know this all. आपको ये ऑलरेडी पता है. अब यही चीज अगर मैं इस लैम्बडा में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये लैम्बडा क्या बन जाएगा? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट दिस लैम्बडा इज गोइंग टू बिकम? दिस लैम्बडा विल बिकम v के लिए अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पे, सो दिस लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2e अपॉन m. अब ये m आप अंदर भेज दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा? या m स्क्वायर बन जाएगा और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2me. Is this clear to all? Any doubt so far? ठीक है, अब यहां पर if I'll substitute, इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये एनर्जी होता है. दिस इज द एनर्जी, दिस इज द एनर्जी विच इज द काइनेटिक एनर्जी. अब हम बात करते हैं एक चार्ज पार्टिकल की. भाई सपोज दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को मुझे एक्सेलरेट करना है इस तरह. तो उसके लिए मुझे वहां पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा और यहां पर एक नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा. इन शॉर्ट मुझे वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करना पड़ेगा. सो दिस देयर हैज टू बी सम पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, ओके, जिसकी वजह से इट विल स्टार्ट रनिंग विद सर्टेन वेलोसिटी. ओके, नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझते हो आप लोग? यू ऑल अंडरस्टैंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? तो जब इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाएगा, द m is the mass of the electron, it starts running with velocity v. तो प्लीज टेल मी द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल से क्या फॉर्मूला होगा? इट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी. इज दिस क्लियर टू ऑल? नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम? अगर इसका पोटेंशियल है v and charge on the electron is e, then the electrical energy associated with this system is e into v. Is that clear? आपको याद रखने पड़ेंगे शायद ये चीजें. एंड यहां पर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो चुका है काइनेटिक एनर्जी में क्योंकि इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगा है यहाँ पे. सो इट विल बी हाफ mv स्क्वायर v से याद रहे. दिस इज स्मॉल v इज द वेलोसिटी, कैपिटल v इज द, ओके. नो मैं इसे बोलता हूं e, कैपिटल E. सो दिस इज इक्वल टू ev. इज दैट ओके? अब ये मैं e यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं क्योंकि मुझे एक पार्टिकल को भगाना है विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी. तो इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से भगा सकते हैं. तो व्हाट दिस लैम्बडा इज गोइंग टू गिव मी? इट विल बी h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, क्या होगा जी बताइए? h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m ev. इज दैट ओके?
और इट कैन बी QV. एनी डाउट्स अबाउट दैट? सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे जी, क्योंकि दीज आर सारे के सारे जो है यहाँ पर. तो ये जो एक्सप्लेनेशन था, दिस वाज डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन. ये हम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में सीखने वाले थे, लेकिन अब सीख चुके. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो यहाँ पर दिस h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू इज 6.63 into 10 raised to minus 31 जूल सेकेंड, सॉरी 34 जूल सेकेंड. मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मैंने आपको शायद बताया था. व्हाट इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन? 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. And charge on the electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. सारी चीजें अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पे, सारी चीजें सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मुझे उस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो मैटर वेव है, जैसे कि यहाँ पर लुई डी ब्रोगली ने बताया कि एवरी पार्टिकल विल हैव इट्स वेव. जैसे हर वेव के साथ एक पार्टिकल जुड़ा होगा, वैसे ही हर पार्टिकल के साथ एक वेव जुड़ा होगा. उसने इन वेव्स को नाम दिया मैटर वेव्स. Now, whatever this theory I told you, this is called as de Broglie's hypothesis. Is that clear? तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन वेव जो मिलता है उसका वेवलेंथ पता चल जाएगा. एंड इफ आई सब्स्टिट्यूट ऑल दिस थिंग्स, तो मुझे यहाँ पर एक कांस्टेंट मिलेगा. आई विल कॉल दिस एज 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v. और ये है या नाउ दिस इज इन वोल्ट्स. और ये जो भी कुछ आंसर आता है वो एंगस्ट्रॉम में आता है. ये जो भी कुछ आंसर आता है एंगस्ट्रॉम में आता है. अगर यही आंसर आपको नैनोमीटर में चाहिए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1.227 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v. तो इन दैट केस लैम्बडा का वैल्यू आएगा वो नानोमीटर में आएगा. और अगर 12.27 यूज करोगे तो वो एंगस्ट्रॉम में आएगा. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो ये है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, wavelength associated with the electron, which is accelerated with this potential. Yeah, matter wave of the electron. It is the wavelength of matter wave of electron. We call this as wavelength of de Broglie wavelength. We can call this as de Broglie's wavelength. We can call this as de Broglie's wavelength of electron. Any doubts about this? This is all given on page number 317. de Broglie's hypothesis के अंदर ये पूरा टॉपिक आ जाता है. और आप इसको इस पॉइंट वाइज फॉर्म में लिख दो सारे. दिस इज ऑल मैथमेटिकल. ये पूरा मैथमेटिकल है. सारे इक्वेशंस एक बार सीक्वेंस से लिख लो, हो गया तुम्हारा de Broglie's hypothesis कवर. इज दैट क्लियर? हम इसको एक डेरिवेशन भी बोल सकते हैं. इस डेरिवेशन में आपको सिर्फ क्या करना है, सीक्वेंस ऑफ इक्वेशंस. यू नो ऑल दीज इक्वेशंस. काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पता है, E इज इक्वल टू mc² आपको पता है. एक नया बताया E इज इक्वल टू h न्यू. उस पैकेट का एनर्जी, फोटोन का एनर्जी कितना होता है, बाकी सारे वैल्यूज आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, मोमेंटम पता है. सिर्फ नंबर ऑफ इक्वेशंस आर कंपाइल्ड हियर वन बाय वन. यू हैव टू प्रोसेस देम ऑल. इज दैट क्लियर? तो ये इसको एक स्टार मार्क कर लो आप. दिस इज ऑन पेज नंबर 317. अब यही चीज मैं यूज करने वाला हूं. पेज नंबर 317 पर de Broglie's हाइपोथेसिस दिया है. कई स्टूडेंट्स को ये थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए लगता है कि वो इक्वेशंस को याद नहीं रख पाते या रखने की कोशिश नहीं करते. तो आपको ये सीक्वेंस अगर आप याद रखोगे तो दिस इज नथिंग लाइक दैट. चलिए शुरू करते हैं अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन. इसी से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन. क्या दिया है जी यहाँ पे? फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव. ये ऑब्जेक्टिव मतलब सेम लेंस. ऑब्जेक्टिव मतलब सेम लेंस. व्हाट इज द रेशियो ऑफ लीस्ट सेपरेशन between the 2 points? Ratio of least separation. Ratio of least separation मतलब I want A1 upon A2, the ratio of least separation of 2 points to be distinguished by the microscope. ये माइक्रोस्कोप से डिस्टिंग्विश करने का है. माइक्रोस्कोप जिसमें लैम्बडा कितना यूज किया है, 5000 एंगस्ट्रॉम. एंड इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू 100 वोल्ट्स. हाँ, मतलब क्या करना पड़ेगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय v. ये होगा एंगस्ट्रॉम में. दैट इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय 100. दैट मीन्स इट इज 1.227 एंगस्ट्रॉम. इज दिस क्लियर टू ऑल?
अब अपने को ये रेशियो चाहिए। नाउ आप माइक्रोस्कोप अगर यूज करते हैं तो नॉर्मली माइक्रोस्कोप नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस, फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन lambda upon 2 mu sin alpha. So I can say A is directly proportional to lambda. ये तो हमने पहले ही बोल दिया है। तो अब ये आएगा A1 upon A2 that is equal to lambda 1 upon lambda 2 that is equal to 5000 upon 1.2 1.2 to the 1.2. So this will become 50,000 upon 12. तो ये आएगा 12 वन जा 4 48 48 2 बचा 20 20 बचा 1 जा 8 बचा 6 जा बदल आता है ये पूरा 4160. So 4160 का नजदीकी आंसर है सी. Is this clear to all? Any doubts about that? Is that clear? Yes. Any doubts about this? I know. So the answer is C here. मैं just C mark कर लूं. Is that okay? अच्छा 10 मिनट रह गए अभी, ठीक है. I'll just